अस्सलामु अलैकुम। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जैसे कि आप तमामी हज़रात को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ज़रिए बताया गया कि आज मस्जिद अहमद रज़ा में ठीक 11 बजे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के हवाले से एक प्रोग्राम किया जाने वाला है। तो आज ये प्रोग्राम ठीक 11 बजे शुरू होगा। तो आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, इसको देखें, जुड़े रहें और अपने दोस्त अहबाब को भी इसके बारे में इत्तला दे दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहारे जा फिजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। बहारे जा फिजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। बहारे बाग़ रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो। बहारे बाग़ रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। बहारे जा फिजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, मियाँ नूरी जवां तुम हो। बहारे जा फिजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Listeners and viewers, as we all know that today we have arranged a unique program and informative program on the topic of cyber security.
The intention, the reason, and the necessity of selecting this topic is, as we all know that each and every one of us, directly or indirectly, we are involved in online transactions, internet services. Especially the post-COVID situation has highlighted more the importance of using online services. Nowadays, even the students, they are using online classes. The small children are also addicted to these online services. That is the reason it has become a most emergency to understand the security concepts of these cyber crimes, as well as how to protect our data. So we have to speak on this topic. Muhammad Nizamuddin Ashrafi, he has completed his engineering in computer science, and he has a very well experience of 8 years in IBM being a consultant. So it is requested, and we are fortunate to have this speaker on this occasion to learn from him. So even I would like to thank him for giving his precious time. So be online with us, and from beginning to end you be, and if you have any questions also you can send, so that as per the convenience we can address your questions also, and later on give your feedback as well. So without wasting much time, I would like to request our guest speaker today, Muhammad Nizamuddin Ashrafi, to light on this topic, cyber security awareness. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, as-salatu was-salamu alayka ya Habiballah, as-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah, sallallahu ta'ala alayka wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, inshallah, today I am going to deliver a webinar on cyber security awareness, and today inshallah I will discuss what is cyber crime, what is cyber security, and what are the importance of cyber security, and few case studies. Along with I am going to present few tools and link where you can use and where you can protect yourself from being a cyber attack. So inshallah today we'll start with our agenda, and cyber security, cyber crime and cyber security. Inshallah I'll let you know what is cyber crime and what is cyber security. So basically what happens is हम लोग बैंकिंग सेक्टर्स में अगर एग्जांपल ले लें तो इंशाल्लाह बैंक में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे विड्रॉल और कैश डिपॉजिट्स होते हैं. तो उसी बैंक में अगर कोई पर्सन विद अ बैड इंटेंट टू स्टील द मनी, अगर कोई पर्सन आता है बैंक में तो वो क्या करता है, चोरी करने की नीयत से आता है, बैंक में चोरी करके चला जाता है. तो उसी बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ रहता है ताकि ऐसे लोगों को बैंक में आने से रोका जाए. सिमिलर वे में ये फिजिकल वे हुआ, फिजिकल थिंग हुआ जहाँ पे लोग चोरी करने वाला जाके चोरी करता है बैंक में. सिमिलर वे अगर कोई बंदा बैंक में अगर अकाउंट ओपन करता है तो उसी बैंकिंग वाले ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हुआ, मोबाइल बैंकिंग हुआ, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि यूज़र्स घर बैठे ही ऑनलाइन के ज़रिए अपने पैसे को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, या फिर अपने पैसे को कहीं और फ्लिपकार्ट में कहीं ऑनलाइन सर्विसेज में यूज़ करे. तो उसी जगह में भी जहाँ पे फिजिकल जैसे चोरी करने वाला आके चोरी करता है, ठीक उसी तरह भी ऑनलाइन में भी चोरी होती है, जिसे वर्चुअल ट्रांजैक्शंस या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जहाँ वहाँ पर भी चोरी होता है. तो उस ट्रांजैक्शंस को हैकर्स या फिर अटैकर बोलते हैं उन लोगों को जो आके ऑनलाइन के ज़रिए हैक करते हैं आपके अकाउंट्स पे और आपके पैसे वैसे ट्रांजैक्शंस में हैक करते हैं. और हैकर का एक ही इंटेंशन होता है कि पैसे कमाना, चाहे आपके विदाउट योर नॉलेज आपके अकाउंट से पैसे ले लेना, या फिर आपका डेटा जो भी है इंपॉर्टेंट डेटा, क्रेडेंशियल डेटा, आपके डेटा ले लेना और उस डेटा के बदले पैसे पूछना. इसे हम रैंसम वेयर करते हैं, रैंसम अमाउंट करते हैं, रैंसम अमाउंट भी कहते हैं इसे. तो उसी बैंकिंग सेक्टर्स में जैसे आप देखेंगे बैंकिंग एम्प्लॉयज़ रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसी टाइप में बैंकिंग में एक टीम होता है जिसे साइबर सिक्योरिटी टीम कहते हैं. वो लोग क्या करते हैं, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बैंकिंग के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए या फिर मोबाइल बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ अटैक्स होते हैं तो उस अटैक्स को रोकने के लिए ये टीम बैठी हुई रहती है. तो हमको मालूम पड़ा कि व्हाट इज़ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम इन द सेंस वर्चुअली आपके ट्रांजैक्शंस, आपके पैसे बैंक से ले लेना, फिर उनके अकाउंट में डाल लेना. उन लोगों को क्रिमिनल्स बोलते हैं, साइबर क्राइम्स होता है, इस एक्टिविटी को साइबर क्राइम बोलते हैं, और वो जो करते हैं उसे क्रिमिनल्स बोलते हैं, साइबर क्रिमिनल्स. और
उसी एक्टिविटी को रोकने के लिए बैंक कोई भी बैंक ले लीजिए, बहुत सारे बैंक है, हर बैंक में एक साइबर सिक्योरिटी टीम होती है जो टीम ये टाइप्स ऑफ अटैक्स को रोकती है। तो इसे पता चला साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है और साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है हमको। मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पे हमको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। हैकर या फिर अटैकर जो आपके बैंक में डेटा स्टील करने के लिए कोशिश करता है, वो एवरी 39 सेकेंड्स, ग्लोबली बता रहा हूँ मैं डेटा, एवरी 39 सेकेंड्स हैकर और द अटैकर विल ट्राई टू take your amount, steal your data, steal your amount from your bank credentials. He will definitely try. सो एवरी 39 सेकेंड्स में ये अटेम्प्ट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए या फिर कोई और डिफरेंट पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ज़रूरी है, ये हम तमाम लोगों को ज़रूरी है। जो भी हम बैंक में जो भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन है फिर नॉर्मल पर्सनस है, हर लोगों को साइबर अटैक्स के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स डाउन द लाइन ले लेंगे तो ऐसा साइबर अटैक, साइबर क्राइम, डेटा ब्रीच ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2G या फिर छोटे मोबाइल्स रहते थे, जहाँ पर स्मार्टफोन्स नहीं रहता था, छोटे मोबाइल्स रहते थे। छोटे मोबाइल्स के ज़रिए आप कुछ हैक वैक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोबाइल हार्डली इंटरनेट को कनेक्ट करेगा। ये मोबाइल सिर्फ आपको कॉलिंग के लिए पर्पस यूज़ आएगा, मैसेजेस आएगा, इतना ही, वो कुछ रिंगटोन बजेंगे, इतना ही। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G से 5G आया और आते जाएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा उसी तरीके से वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अगर 4G अब चल रहा है फिल वक्त, अगर बंदा कोई फ़ोन लेना चाहे या फिर कुछ लेना चाहे तो क्या करेगा बंदा? ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस फीचर का फ़ोन, जैसे 6GB रैम या फिर 128GB या फिर विथ 5G कॉन्फ़िगरेशन वाला 15-20 हज़ार का मोबाइल ले लेगा, क्योंकि आने वाले 10 सालों के लिए उस फ़ोन का वैलिडिटी रहे, उस फ़ोन का परफॉर्मेंस 10 सालों के लिए ऐसे ही रहे। तो ये बंदा इस नीयत से लिया है फ़ोन, लेकिन उसी में भी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होता है। वल्नरेबिलिटी इन द सेंस वीकनेस, उसी टाइप के डिवाइसेस में वीकनेसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग या फिर इवन विद टेस्टिंग वल्नरेबिलिटी ज़्यादा फाउंड होते हैं। वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है फ़ोन। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी, हर लोग जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे लोग अगर जुड़ेंगे तो वहाँ पे साइबर क्राइम्स, साइबर अटैक्स ज़्यादा होता है, जैसे पुराने फ़ोन्स में नहीं होता। और डैमेज टू द बिज़नेस, डैमेज क्या है बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे कंपनी में 10,000 बंदे काम कर रहे हैं और मेरे कंपनी के 30 या फिर 50 क्लाइंट्स हैं। ओके, मैं अच्छा खासा कमा ले रहा हूँ अभी कंपनी के ज़रिए। अगर मेरे कंपनी को साइबर अटैक होता है, साइबर अटैक इन द सेंस हैकर्स आके मेरे कंपनी के डेटा स्टील कर लेते हैं। स्टील करने पर क्या हो गया, मेरे कंपनी का रेपुटेशन कम हो जाता। रेपुटेशन कम हो गया तो क्या होता, ये जो क्लाइंट्स रहते हैं मेरे 50 से घट को 10-20 आ जाते। 10-20 आ गए तो क्या होता, मेरा रेवेन्यू कम होता। मेरा रेवेन्यू कम हो तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को निकाल लेता हूँ। अगर 1000 आदमी काम करते रहते उसमें 900-800 आदमी को निकाल लेता हूँ, हम 100 आदमी को रख लेता हूँ। तो अगर मेरे एज अ कंपनी ओनर मुझे भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जैसे आम आदमी को, क्योंकि मेरा डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए और ताकि मेरा बिजनेस अच्छा रन हो सके, ताकि मैं क्लाइंट का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकूं। तो उस तरीके से ये साइबर सिक्योरिटी डैमेज टू द बिजनेसेस एंड लॉस ऑफ अ जॉब. So I have covered 3 points. One is cyber attack affecting all the peoples, and the fast change in technology will cause a boom in cyber attacks. And the third is damage to businesses and a loss of job. And the fourth one is identity theft. So identity theft in the sense, आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि यूजुअली क्या होता है जब हम नया सिम कार्ड खरीदते हैं कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का, सेलुलर डिवाइस का, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन या फिर रिलायंस, जियो, कुछ भी सिम ले लो, आप एक महीने में खरीदने के विद इन 1 month और 1.5 month यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स. ये कॉल क्यों आते हैं एक्चुअली? क्योंकि ये जो वेंडर्स है, एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सेलुलर नेटवर्क वेंडर्स, ये लोग क्या करते हैं, आपके पास डेटा कलेक्ट करते हैं आधार बेसिस पे, इस बेसिस पे डेटा कलेक्ट करके विदाउट योर इन्फॉर्मेशन दे विल सेल इट टू समवन एल्स. व्हाई? फॉर द सेक ऑफ मनी. ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रोमो हासिल करने. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कंपनी शुरू कर रहा है, उनके लिए कस्टमर्स चाहिए, तो क्या करते हैं, कस्टमर्स कहाँ से लेते हैं, कोई भी वेंडर से टाइप करते हैं, उनको थोड़ा पैसे देते हैं, समझो 50,000 1 lakh फॉर एयरटेल, दे विल पे, दे विल टेक 1000 कस्टमर डिटेल्स एंड दे विल पुट इट इन देयर डेटाबेस, दे विल स्टार्ट कॉलिंग द कस्टमर्स. ऐसे तंग करना शुरू कर देते हैं. हालांकि मेरा नंबर किसी भी नहीं दिया, फिर भी आई विल स्टार्ट गेटिंग द कॉल्स फ्रॉम दिस गाइज. Sir, we have so and so offer from credit card. Sir, we have so and so offer for land. We have plot selling and we have other facilities as well. These people, where they'll get the contact number of us? They'll get it from these vendors. So ये क्या हुआ, आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, जिसपे विदाउट आवर कंसर्न they'll start to take the data.
And the last one is cyber concern may result in increased regulations and legislations. So होता क्या है एक्चुअली, जब आप कोई भी वेबसाइट में कोई भी सर्विस हासिल करने के लिए जब आपका डेटा क्या होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर या फिर पासवर्ड या फिर आपकी फैमिली डिटेल्स कुछ फिल करना होता है, एड्रेस वेड्रेस सारा कुछ। इन इंडिया में ऐसा कोई गवर्नेंस लॉ नहीं है जिससे इस डेटा को हम प्रोटेक्ट कर सके। हमने तो दे दिया उन लोगों को, डेटा सर्विस प्रोवाइडर को, फॉर एग्जांपल एयरटेल को ही दे दिया। उनके पास इन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं कि ये लोग उस डेटा को यूज़ कर सके। वेर इन यूएस अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में ले लेंगे तो वहाँ पर एक लॉ है, रिसेंटली वहाँ पे एक लॉ बना था GDPR करके। ये होता है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस करके, जिसपे विदाउट द यूज़र कंसर्न यू कांट यूज़ द डेटा फॉर योर पर्सनल पर्पस टू गेट द प्रॉफिट। तो इस तरीके से विदाउट यूज़र कंसर्न आप वो डेटा को नहीं ले सकते, आपको यूज़र का कंसर्न लेना होता है। इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा थोड़े वेबसाइट्स में, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज के वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे गूगल पे तो नीचे दिखा देगा आई कंसर्न, आई डू नॉट कंसर्न करके। आई कंसर्न इन द सेंस यू कैन वट एवर द डेटा आई एम गोइंग टू फीड इन टू योर मशीन यू कैन यूज़ इट, तो होता है आई कंसर्न। आई डू नॉट कंसर्न इन द सेंस ये जो कंसर्न होता है, आई डू नॉट कंसर्न, यू कैन नॉट यूज़ माई डेटा अंटिल अनलेस यू गेट अ परमिशन फ्रॉम मी। तो ये तरीके से इस तरीके से हमको नॉर्मल पर्सन्स को भी एज़ पर गवर्नमेंट लॉ जो भी होता है उसे फॉलो करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस जानकारी करना हासिल ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मैं कुछ आपको केस स्टडीज़ बताऊंगा। केस स्टडी इन द सेंस, पहले बड़े बड़े कंपनीज़ों में जैसे जैसे साइबर ब्रीच हुआ है, डेटा कितना हैक हुआ है, फिर डेटा हैक होने के बाद, डेटा पर्सनल डेटा कलेक्ट करने के बाद उन लोगों ने हैकर्स ने कितना आपको रैंसम अमाउंट पूछा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दूंगा। लास्ट ईयर 2020 में द एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच इज़ 3.86 मिलियन, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं। 2020 में वर्ल्ड वाइड में जितना भी डेटा ब्रीच हुआ तो रैंसम अमाउंट कितना कलेक्ट करे, अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़। जो हैकर्स है 30 करोड़ मांगे, तुम्हारा पर्सनल डेटा मेरे पास है, तुम ना हो ना बोले तो बोलो मैं देता हूँ। एक्चुअली पर्सनल डेटा होता क्या बोले तो, अब तुम्हें, हम तो आम इंसान, जो कंपनीज में काम करता, जो बैंक्स में काम करता, उनके जो एक्सेल्स, उनके जो फाइल्स मेंटेन करते रहते बहुत कॉन्फिडेंशियल रहते हो। अगर हैकर क्या करता वो चीज़ को इनक्रिप्ट कर डालता, क्या भी नहीं, छोटा फाइल भेजता, उन्हें क्लिक करता, डाउनलोड करता, पूरा सिस्टम हैक हो जाता। क्या भी करे तो नहीं होता, या तो फॉर्मेट करना, पूरा सिस्टम फॉर्मेट करे तो डेटा पूरा जीरो हो जाता, या तो ये करना, या तो उन्हें पूछता ये नंबर को कांटेक्ट करो, मैं तुमने कोड बोलता हूँ, कोड डाले तो तुम पूरा डेटा तुम्हें मिलता बोलते। तो उन्हें क्या करता, या तो ऐसा रैंसम अमाउंट को इनक्रिप्ट कर डालता डेटा, तब मैं पैसे पूछता हूँ उन्हें। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज क्या हुआ 2020 में 30 करोड़ ऐसा हैक करके है, पर्सनल डेटा हैक करके, कॉन्फिडेंशियल डेटा देना पड़ता पैसे, नहीं तो डेटा पूरा चले जाता, पूरे कंपनी का डेटा पूरे सिस्टम में सेव होकर आता। तो ऑन एन एवरेज 30 मिलियन रैंसम अमाउंट पूछा गया लास्ट टाइम, लास्ट ईयर 2020 में। और पर्सनल डेटा उसमें कितना था, 58% ऑफ द पर्सनल डेटा उसमें इन्वॉल्व था। जैसे पर्सनल डेटा इन द सेंस, जब सोशल मीडिया में जब रजिस्टर करते हैं, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टा ले लो, जो भी व्हाट्सएप कहाँ भी ले लो, तुम्हारा नाम नंबर, ये बेसिक थिंग है, तुम्हारा नाम नंबर यूज़ करते हो ना रजिस्टर करने के वास्ते, ये हमारा पर्सनल डेटा। अब एक आम आदमी वहाँ चल फिर रहा, हमने मालूम क्या उसका नाम क्या नंबर क्या था, नहीं मालूम, इन्हें कहाँ यूज़ कर रहा था, ऑनलाइन में यूज़ कर रहा था, उसके डेटा को चोरी करना। वो थ्रू आउट ग्लोबल 2020 में 58% ऑफ पर्सनल डेटा हैक करे से हैकर्स। और उसी तरीके से आपको ट्विटर मालूम रहेगा, ट्विटर अकाउंट 2020 में 130 अकाउंट्स, 130 मिलियन अकाउंट्स हैक करे से ट्विटर अकाउंट्स। हमें मालूम भी नहीं रहता कि एक बार ट्विटर अकाउंट हैक हुआ बोलगा, हमारा खुद का अकाउंट, ताकि नोटिफिकेशन हमें एनेबल नहीं करे रहते। यूजुअली क्या होता, कौन से भी सोशल मीडिया में हमें इफ़ वी रजिस्टर आवरसेल्फ इन सोशल मीडिया एंड इफ वी configure our profile in such a way that if someone hacks from some different region then I should be notified. यूजुअली अब आप देख रहेंगे इंस्टा में, मैं खुद ऑब्जर्व करूँगा, मेरा खुद अकाउंट क्योंकि पासवर्ड वीक था उसकी वजह से कहाँ की दूसरे कंट्री से कौन की हैक कर रहा है, आई गॉट अ नोटिफिकेशन टू चेंज द पासवर्ड इमीडिएटली, सो आई डिड इट एंड आई सेव्ड माई अकाउंट। यूजुअली क्या होता है, उन्होंने हैक कर लेते, हैकर को तुम्हारे अकाउंट में क्या मिलो डालने का, क्या मिलो करने का करते हैं, जिससे तुम्हारा रेपुटेशन, जैसे मैं बोला पुराना पहले क्या होता है, रेपुटेशन डाउन हो जाता। जो अगर कंपनी का अकाउंट रहा तो कंपनी का मार्क गिर जाता, उसके क्लाइंट्स चले जाते, उसका लॉस होता, लॉस है तो जॉब चले जाते नीचे के पूरे। तो इस तरीके से वो लोग हैक करते हैं, हैक करके आपको आपके अकाउंट्स का पर्सनल डेटा हैक करके आपको बिजनेस डाउन कर देते हैं हैकर्स।
और 94% ऑफ मालवेयर्स आर डिलीवर्ड बाय ईमेल। तो उसका क्या मीनिंग हुआ? यूजुअली ईमेल्स भी रहता, बहुत सारे लोगों का ईमेल बनाए रहते हैं। स्मार्टफोन्स बोले तो जब भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो ईमेल डालना कंपलसरी हुआ। अगर नहीं रहा उस वाला भी उन्हें ईमेल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करके छोटा क्या कि एक नंबर डाल देता, मोबाइल नंबर याद रहता है भाई के, तो ये डाल डालता नंबर डाल को कॉन्फ़िगर तो कर डालता। ईमेल जैसा कॉन्फ़िगर करता जीमेल कॉन्फ़िगर हो जाता उसका। जब भी हैकर्स क्या करता उसे एक टाइप ऑफ फिशिंग अटैक बोलते हैं। फिशिंग है क्या? अब एक पॉन्ड रहता, मच्छी का पॉन्ड या फिर आप पानी का पॉन्ड या फिर नाले देख लिया रहता, तो नाले में आदमी मच्छा पकड़ने जाते हैं। क्या करते हैं उन्होंने? एक लंबा लकड़ी रहता, लेको फिशिंग रहता, उस दाल को मच्छी पकड़ते, बल्ले एक मच्छी में एक मच्छी पकड़ा जाता, पकड़े उसे मच्छी फिर डालते, आ जाती मच्छी खा रहा। सेम उस तरीके से हैकर्स क्या करते हैं, एक 10,000 या फिर 20,000 या फिर बल्क अमाउंट में ईमेल आईडी को सेंड करते हैं डेटा, अपना अटैचमेंट करके, अपना मालवेयर अटैचमेंट होता है इसमें। खाली अटैचमेंट क्लिक करे तो बस डाउनलोड हो जाता, तुम्हारा सिस्टम हैक हो जाता, तुम्हें मालूम भी नहीं रहता सिस्टम हैक हुआ बोल का। हालांकि कई को मालूम नहीं होता, बोले तो हमें क्या होते हैं VIP बड़े पर्सन्स नहीं जिनका क्रिटिकल अकाउंट रहता है। जैसे हमें बड़े बड़े आदमी ले ले, तो जैसे PM ले लो या फिर बिल गेट्स ले लो या फिर नाडार ले लो, तो ऐसे लोगों का अकाउंट्स हैक हो गए तो बिजनेस इंपैक्ट रहता। क्या बोलते हैं अब समझो, बिल गेट्स का अकाउंट हैक होगा, न्यूज़ में आ गया, क्या समझते हैं आदमी? माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स उन्हें खुद का CEO का अकाउंट नहीं बचा ले सके, हमारा अकाउंट क्या बचा देगा? बिल्कुल रेपुटेशन डाउन हो जाता है उनका। तो इसलिए वो चीज़ को बचाने के वास्ते भी इन्हें क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी उनकी पूरी स्ट्रांग रहती। तो मैं बोला 94% ऑफ मालवेयर्स जैसे ईमेल कॉन्फ़िगर करे, तुम्हारे इनबॉक्स को मेल्स आते रहते हैं, अननोइंगली तुम्हें कोई सा भी मेल डाउनलोड करे तो तुम्हारा मेल अटैक हो जाता। वैसा 94% अटैक्स हुआ सो, मालवेयर अटैक्स हुआ सो, ईमेल के जरिए डिलीवर हुआ सो। और तुम्हें यूबर कैब मालूम रहेगा, ओला जैसे मालूम है, यूबर जैसे मालूम है, ऐसा यूबर कैब का भी डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोल हुआ। कितना? अराउंड 57 मिलियन यूजर्स अकाउंट। कैब बुक करना बोले तुम्हें रजिस्टर करना चाहिए, नंबर डालना, नाम डालना, सब भी करना। ये डेटा पूरा हैकर्स हैक कर डाले। यूबर क्या करे, जरा पैसे ले मेरे डेटा दे डाल यूज़र के, बोल पैसे देखो ले लियो ना यूज़र डेटा वो मालूम ही नहीं पड़ता बैकग्राउंड में क्या कर रहे कंपनीज बोले तो, अनटिल अनलेस क्या भी एक्सप्लोजर नहीं होता। फॉर एग्जांपल और दूसरा क्या है, और याहू तो मालूम रहेंगे आपको, जैसे जीमेल बड़ा सर्विस है ईमेल प्रोवाइडर, ऐसा भी याहू एक बड़ा सर्विस है ईमेल प्रोवाइडिंग का, जिसमें उनका भी 2013 में 3 बिलियन अकाउंट्स हैक हो गए थे उनके भी। तो उतने सारे बड़े बड़े कंपनीज के खुद के अकाउंट्स यूजर्स जब रजिस्टर करते वो अकाउंट से हैक कर लेते हैकर्स, उतना क्रिटिकल होता। और रिसेंटली आप देख रहेंगे डोमिनोज के, तो डोमिनोज पिज़्ज़ा सेल करती कंपनी हो, उसमें क्या हुआ रिसेंटली हैकर्स हैक कर डाले, एक URL दे डाले, वो URL में तुम जाकर तुम्हारा नंबर मारो, अब पहले से लेकर अब तक का जितने भी तुम्हें ऑर्डर्स प्लेस करे पूरे ऑर्डर्स पूरे पैसे दिखता है उसमें। मेरे पास खुद वो लिंक है, किसी तो होना है तो बोलो, वो लिंक देता हूँ, वहाँ तुम्हें चेक कर सकते कितना ऑर्डर पिज़्ज़ा में करे अब तक का बोल को। तो ऐसे बहुत सारे अटैक्स है, बहुत सारे केस स्टडीज़ है जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज साइबर अटैक के विक्टिम हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं बताऊंगा किस तरीके से अटैक्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, बेसिक थिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, उसके ज़रिए कैसे कैसे अटैक्स आते हैं और उसको हमको कैसे डिफेंड करना है। मोबाइल डिवाइस होगा या फिर लैपटॉप आपका, डेस्कटॉप होगा, दो भी डिवाइसेस का इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। और मोबाइल डिवाइसेस, फर्स्ट विल गो फॉर द मोबाइल डिवाइसेस एंड we have social media platforms such as Facebook, Insta, Twitter and all this stuff. So यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको सोशल मीडिया में जाते हैं अनोइंगली आपको थोड़े बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पर्सन्स and while you have opened an account you'll get some suggestion videos, links and many things. So what I would suggest is do not click on any links, do not just for entertainment purpose, don't just start scrolling and visit any malicious website and get a part of victim of cyber attack. So पहले तो ये कि अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। और व्हाट्सएप को बताता हूँ, व्हाट्सएप में बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे व्हाट्सएप के ज़रिए आपका सिस्टम हैक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया फाइल जैकिंग। ये मीडिया फाइल जैकिंग क्या होता है एक्चुअली, आपका नंबर है व्हाट्सएप में, अपने नंबर और नाम रजिस्टर कर दिया, कोई भी अननोन पर्सन आपको एक मीडिया फाइल भेजेगा। हमको एक्साइटमेंट में क्या होता है एक्चुअली, वो देख के क्या भेजा, कौन की भेजा, क्या भेजा, वो एक्साइटमेंट में क्या करते, क्लिक करके डाउनलोड करते इमेज। ईजिली जस्ट फ्यू सेकेंड्स में वही मीडिया फाइल को, वही मीडिया फाइल के पीछे एक मैं कोड बाइंड करके भेज डालता हूँ किसी से भी, उन्हें डाउनलोड करा, सिस्टम का पूरा डेटा हैक होगा आराम से। These media files, I'll embed some exploit into that media file so that whenever the user click
click on the file, then I'll get a reverse connection from that user that I'll get the full access of that mobile. तो उस तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मीडिया फाइल्स होते हैं वो सब भी डाउनलोड नहीं करना है। और इससे पहले होता था वॉइस कॉल अटैक्स, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ काउंट नहीं है उसके बारे में। क्या होता है एक्चुअली, वॉइस कॉल्स जब आप व्हाट्सएप में जाने होंगे, वीडियो कॉल होता है, वॉइस कॉल होता है। यूजुअली वॉइस कॉल करने पर किसी अननोन नंबर को विदाउट रिसीविंग द कॉल ही माइट बी अ विक्टिम ऑफ अ अटैक। तो अटैकर हैकर आराम से उसका डेटा स्टील कर ले सकता है। वो वॉइस कॉल, अननोइंग वॉइस कॉल्स आते हैं, उसे अवॉइड करना है। और अभी लॉकडाउन चल रहा था तो लोग क्या कर रहे हैं, इवन आई हैव फेस्ड मेनी थिंग्स, ऑन अ मंथली बेसिस आई विल गेट 5 to 6 new pings from unknown persons stating that due to the lockdown you might have lost the job and you can earn monthly 30 to 40,000 by using this link। ऐसे लिंक्स आते हैं, हाइपर लिंक, क्लिक करे तो बस तुम्हारा डेटा गया। क्लिक खाली ये अब ये भी पहले अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ले लो, XP, विंडोज़ XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP था, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1, 10, अभी 11 आने वाला है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, विंडोज़ XP में विदाउट यूज़र इंटरवेन इन द सेंस यूज़र को क्या भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, खाली ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, मुझे IP मिला, मैं क्या भी नहीं सर का सिस्टम हैक कर डालता हूँ विदाउट एनी क्लिक। यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता सिस्टम के साथ, फिर भी मैं डेटा काट ले सकता हूँ। लेकिन XP के बाद 7 जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें क्लिक्स करना, यूज़र को ये करते इनकरेज करते हैं, भाई तुझे आया पैसे, क्लिक कर, अकाउंट में गिरता तेरे पैसे, लिंक दे डालते, $30,000, $30 इतना $उतना बोल को क्लिक करते, हमें विक्टिम बन जाते उस अटैक का। और आपको थर्ड पार्टी ऐप्स इन द सेंस देख रहेंगे आप दोस्तों, मैं वहाँ यहाँ people what they will use is they'll download some third party apps and they'll get the 30 seconds of video just to get entertained and just to entertain other people, they'll share that video using WhatsApp to that platform। तो ऐसा करने से क्या होता है एक्चुअली, थर्ड पार्टी वीडियो 30 सेकंड्स वीडियो शेयर करने की नीयत से हम कोई सा भी वीडियो डाउनलोड करते हैं, वो कभी भी नहीं करना, क्योंकि तो वो ऑथराइज नहीं रहता। गूगल कितना लेता प्ले स्टोर में, once I develop an app with an APK extension, I can upload into the Google Play Store with just $18 एक बार मैं पे कर डाले तो बस मैं क्या भी पीछे बैकग्राउंड में हैकिंग कोड एम्बेड करके उसे भेज डाले तो गूगल एक्सेप्ट कर लेता, पुश कर डालता। लोग क्या करते हैं 30 सेकंड्स बाद वीडियोस में अच्छे रहते वीडियोस, वो क्लिक करते, डाउनलोड करते, हो गया, उसका डेटा जाते ही रहता, बैक एंड में डेटा ये होते रहता, हैक होते रहता, तो मालूम भी नहीं रहता डेटा ले छोड़ा उन्हें। डेटा मीन्स क्या होता हमारा यूजुअली वीडियोस, घर के वीडियोस, फिर पिक्चर्स, मोबाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंकिंग ऐप्स रहते हैं जिसमें तुम्हें पासवर्ड डालते, CVV नंबर डालते, नंबर 16 डिजिट का नंबर डालते, ये सब भी डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता। तो इसलिए थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं यूज़ करना। मैं उसको डिफेंड करने के तरीके बताता हूँ, किस तरीके से व्हाट्सएप सर्विसेज यूज़ करते आप अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। यूजुअली जब आपको अननोन पर्सन से मैसेज आता तो क्या करना, मैसेज ओपन करने से क्या भी नहीं होता, मैसेज ओपन करके क्लिक करते ना, ये लिंक्स क्या भी, तब क्या तो होता सो, तब तुम्हें क्या करना, ओपन करना मैसेज के राइट साइड में तुम ना एक बटन दिखाता, 3 ऑप्शंस का बटन, वो ऑप्शंस क्लिक करना, रिपोर्ट के तो बटन दिखाता, रिपोर्ट क्लिक करे तो उसमें 2 ऑप्शन दिखाता, रिपोर्ट एंड ब्लॉक बोल को, वो चेक करना, सबमिट करने से क्या होता, फेसबुक यूज़र्स को नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है उनको नोटिफिकेशन जाता कि दिस नंबर इज ट्राइंग to have a phishing attack. He's trying to targeting many peoples, stating that he can earn some ransom amount। जैसे मैं आपको बताया पहले भी, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आपको मैसेज आता 30,000 40,000 मंथली कमा सकते हैं बोल को। ऐसे लोगों को क्या करना, जाना, क्लिक करना, ओपन करना, रिपोर्ट कर डाले तो हमारा भी कॉन्टैक्ट ब्लॉक हो जाता, नेक्स्ट टाइम ये नंबर से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। उसके साथ साथ हमें फेसबुक और व्हाट्सएप को रिपोर्ट करते हैं कि ये ने आपको फिशिंग अटैक कर रहा, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस डाल रहा कि पैसे कमा सकते हैं मंथली 30 से 40,000 बोल को, ये आदमी को ब्लॉक करो तुम्हारे कम्युनिटी में बोल को। तो उस तरीके से ब्लॉक करे तो मैं खुद भी बच जाता और दूसरों को भी बचाने की ट्राई करता हूँ। तो ऐसा जब 1000 आदमी भी करे तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या करते हैं, 1000 मेंबर्स रिपोर्ट करने की वजह से उन्हें क्या करता, नंबर ब्लॉक कर डालता। ये तरीका है, कोई भी अननोन पर्सन आपको मैसेज करे तो। और ऑटो डाउनलोड्स जो रहते हैं ना हमारे, क्या रहते हैं, म्यूजिक फाइल, पिक्चर्स और वीडियोस, ऑटो डाउनलोड्स में रहते हैं, चिक मार्क रहते पूरे अनचेक करके रखना। जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई सा भी वीडियो डाउनलोड नहीं होना।
वो करने से क्या होता है, मीडिया फाइल हाईजैकिंग से हमें बच सकते हैं। अगर वो सब भी डाउनलोड एनेबल रहा तो कौन भी मैसेज भेजा व्हाट्सएप में, भेजते ही इमेज डाउनलोड हो गया, तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया, तुम्हारा मोबाइल हैक हो गया, तुम्हारा पूरा डेटा चले जाता उसमें से। और क्या करना, इनक्रिप्शन एनेबल करना। देखेंगे तुम्हें प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएगा तो तुमने इनक्रिप्शन के तो ऑप्शन दिखाता है, इनक्रिप्शन एनेबल करे तो तुम्हें जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें जो रेस्पॉन्स दे रहा तुम्हारे उसके बीच में चलता, वो कौन भी बीच में आपको मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं, जिसमें हम जो कम्युनिकेशन रहता एक ए और बी के बीच में, हमें बीच में जाकर उन्हें डेटा स्टील करना ट्राई करता, इससे हमें बच सकते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप खुद उन्हें कोई भी अगर उतना भी ज़रा बड़ा क्राइम नहीं हो रहा तो भी किसी भी नॉर्मल पुलिस एजेंसी को किसी भी उन्हें डेटा देता नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप का पॉलिसी जैसा है कि आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू एनी काइंड ऑफ ट्रांसैक्शन, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द टू कस्टमर्स। तो उस तरीके से हम इनक्रिप्शन इनेबल करते हैं, हमें बच सकते हैं। और मैं बताया लिंक्स के लिए नहीं क्लिक करना, कौन से भी लिंक्स अगर आए तो व्हाट्सएप में अननोन पर्सन से। और रही बात फ़ोन पे, जी पे, फिर बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग ऐप्स है, जैसे अकाउंट ओपन करें तो उनके प्ले स्टोर में उनके बैंकिंग ऐप्स मिलते हैं, जैसे यूनियन बैंक, SBI, HDFC, बहुत सारे बैंक्स मिलते हैं। वो बैंक्स भी जब ऐप कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑथराइज्ड बैंक रहना, प्ले स्टोर में जाना, करेक्ट वो जब भी तुम्हें बैंक का नाम सर्च करते नीचे दिखाता वहाँ तुमने कि ये आज फॉर एग्जांपल है HDFC बैंक मारा तो HDFC बैंक का नाम दिखाता, दिस ऐप इज़ बीन डेवलप्ड बाय HDFC ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऐप डाउनलोड करना तुम्हें, अनोइंगली जो ट्रस्टेड ऐप्स रहता बैंक्स के वो ऐप्स डाउनलोड करना। उसके अलावा दूसरे थर्ड पार्टी के ऐप्स डाउनलोड करे तो यू माइट बी ए विक्टिम। डन। सो वंस यू डाउनलोड इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड community trusted developer, enable your fingerprint scanning and give a strong password and whatever accounts that you want to manage, and you can aram se configure your apps, bank apps easily. And just to make sure that it is secure, just enable face scanning, fingerprint scanning, and do not share your PIN and all those stuff with any friends or relatives and anyone else. Again, it might be a misuse of those credentials. And inshallah अभी मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के ज़रिए क्या टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं और उससे हम कैसे बचते हैं। लैपटॉप्स में भी जो यूज़र्स लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, फिर साइबर सेंटर्स तो बंद हो चुके हैं बहुत सारे। अब हर लोगों के पास लैपटॉप है, मोबाइल्स है, डेस्कटॉप है, उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। यूजुअली उसमें कैसा होता है, जब आप कोई भी टास्क है, फिर कुछ सर्फ कर रहे हैं इंटरनेट में, कुछ सर्फ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होता है, सस्पिशियस वेबसाइट्स दिखते हैं हमको। रिसेंटली मैं आपको एक अटैक के बारे में बताता हूँ, बेंगलोर में हुआ। उन्हें क्या करे, एक बंदा सैलरी वैलरी आ गया, फर्स्ट ऑफ मंथ ही गॉट द सैलरी, व्हाट ही डिड इज ही वेंट टू गूगल, ही टाइप्ड ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन, सो ही गॉट सम लिंक्स, he was not knowing which link is genuine and which link is suspicious. He just clicked on one of the link, एक सेम पिज़्ज़ा साइट जैसा ओपन हो गया, उन्हें अपना डिटेल्स सब भी दिया, बैंक अकाउंट सब भी, CVV नंबर सब भी दिया, क्लिक करा, उन्हें क्या करे, पिज़्ज़ा का अमाउंट जो भी था समझो 150 या फिर 200 रुपीज़ वो पे करा। पे करने के बाद इमीडिएट 2 मैसेजेस आए उसके अकाउंट, उसके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को 45,000 विड्रॉड। अब एक मैसेज 5 मिनट्स में, अभी एक मैसेज आया, फिर 45,000 विड्रॉ। तब मैंने क्या करा, कई को ऐसा आया, इवन ही वाज पैनिक, व्हाई डिड आई रिसीव दिस मैसेज, बिकॉज व्हाट ही डिड इज he searched online pizza, he navigated to some suspicious website and that was developed by that hacker. So what they will do is they'll create a same replica of what exactly the pizza services is providing. For example, if you take Domino's or Pizza Hut or any of the services, they have online web page as well. What the hacker will do, they'll create a replica of that and they'll showcase to the user. User will enter all the details, his name, number and credit card and CVV and everything. That's it, gone. He'll take the data, he'll take the data with the bank, he'll take the amount, he'll take it with me. So in this way ये लोग क्या करते हैं, हैक कर देते हैं आराम से। तो हमको क्या करना है, जब भी हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कुछ भी सर्व करना ट्राई करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी गूगल में सर्च करते हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर विजिटिंग द जेन्युइन वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल sunnidawatislamee.net, जब आप सुन्नी दावत इस्लामी मारते इंटरनेट पे गूगल में, मारते ही बहुत सारे पेजेस दिखा देते हैं, उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग हैक करना ट्राई करते हैं, क्योंकि वो तहरीक वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, विल क्रिएट द सेम टाइप ऑफ पेज और दे विल टेक सम नाथ शरीफ ऑफ कारी साहब एंड सैयद साहब एंड दे विल पुट इट इन देयर पेज टू गेट द विजिटर्स। वंस दे गेट द विजिटर्स, इट्स ईजी फॉर देम टू क्रिएट अ सस्पिशियस लिंक एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, विल गेट द डेटा।
तो वी नीड टू नो कि हम कौन सा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो करेक्ट वहाँ पे जाना है, गूगल में मारना है, फिर डायरेक्ट आपको यूआरएल मालूम है तो क्रोम ओपन करना है, फिर कोई ब्राउजर ओपन करना है, आपको पूरी यूआरएल मारे तो करेक्ट विल नेविगेट टू द करेक्ट मैन। सो वन थिंग इज visiting suspicious website may lead the attacker to gain the access of the system। और मैं पहले बताया कि डाउनलोडिंग सस्पिशियस ईमेल्स अटैचमेंट्स, जैसे ईमेल्स तो बहुत सारे लोग आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑफिस पर्पस के वास्ते यूज़ करते हैं, एक्सेल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वी शुड मेक श्योर वंस अ ईमेल इज अराइव्ड इन आवर मशीन इन टू आवर ईमेल बॉक्स, वी शुड मेक श्योर दैट द सेंडर इज़ नोन टू मी। मुझे मालूम है ना कौन भेज रहा है मैसेज। अगर कौन की abc.exe.abc123 क्या की जीमेल बना को मुझे मेल भेजे अटैचमेंट के साथ, मैं नहीं खोलना। अगर कौन भी समझो रोशन ज़मीर मुझे मैसेज भेजे तो मैं जानता हूँ रोशन ज़मीर को, तो वो अटैचमेंट मैं ओपन करके डाउनलोड कर सकता हूँ। बिफोर दैट आई गेट अ कॉल और आई गेट अ मैसेज फ्रॉम देम स्टेटिंग आई माइट रिसीव इन एक्सेल, प्लीज वैलिडेट एंड सेंड इट टू मी बैक। सो फर्स्ट थिंग इज ईमेल अननोन मेल्स डाउनलोड नहीं करना। हालांकि हमें जो भी ईमेल सर्विसेज है जैसे जीमेल याहू, उनके उसमें एक स्पैम रहता, स्पैम बॉक्स रहता, देख रहेंगे तुम्हें ऑल मेल्स रहता, रीड सेंट आउट, उस आउट बॉक्स उसके बाद स्पैम करो रहता। दे हिमसेल्फ हैव द स्पैम इंजन। व्हाट दे विल डू इज दे विल वंस यूजर गेट्स अ मेल दे विल हैव सम डेटाबेस crores of email addresses, so they'll match with the database. If that's matching and if the Gmail in search engine Gmail engine decides it's a spam mail, then it will send it to spam। अगर आपके ईमेल ओपन कर को स्पैम में भी चेक करे तो मेल्स रहता वहाँ, वो लेके मेल्स आए रहते हैं और एवरी 30 डेज को मेल्स पूरा क्लीन होते रहता। तो वो कौन से मेल्स हो, एच मेल्स हो जो जीमेल खुद डिसाइड करा कि ये सस्पिशियस मेल है, ये नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट, यू कैन इग्नोर दोस मेल्स। तो ईमेल सर्विसेज खुद हमको सपोर्ट करती है ये सब भी हटाने के वास्ते। फिर भी एक करोड्स ऑफ डेटाबेस में अभी नए ईमेल आईडी बना को हैकर्स भेजते रहते हैं, फिश एज ए पार्ट ऑफ फिशिंग अटैक हमें डाउनलोड करते हैं, हमें विक्टिम हो जाते हैं। तो वो चीज़ को बच कर रहना। और इमेजेस भी कौन से भी क्लिक नहीं करना इन द मेल, नॉट अटैचमेंट, जेन्यून रहना, सेंडर हमना नोन रहते तभी अटैचमेंट डाउनलोड करना। और यूएसबी स्टिक्स, अब लैपटॉप रहते डेस्कटॉप रहते क्या करते दोस्तों के पास वहाँ यहाँ पेंट्राइव वेंट्राइव रहते, तू लाभा तेरा डेटा है, तू लाभा मेरा डेटा है, बिल्कुल इन्हें इससे लगा था इन्हें इससे लगा था, ऐसा होगा ईजिली आपके सिस्टम्स में बहुत सारे अब तभी थ्रेट्स आगे रहते हैं, वायरसेस आगे रहते हैं। मैं तुम्हें सोच रही है मेरा सिस्टम अभी भी सिक्योर है, मेरे पास एंटीवायरस सब भी है, फिर भी यूएसबी के जरिए डेटा ट्रांसफर होते रहता है और एंटीवायरस को बाईपास होता है। यूजुअली क्या होता है, एंटीवायरस स्टार्टिंग 30 डेज या फिर 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर का रहता फ्री ट्रायल पैक, उसके बाद पेड रहता, हमें पेड नहीं करा लेते, वो चलते रहता चिपके, सिस्टम भी स्लो कर डालता एंटीवायरस, और जो भी वायरस रहता वायरस भी जाते रहता, एंटीवायरस भी काम नहीं करता, हमारा काम करने देता नहीं सिस्टम, बेकार पड़े रहता सिस्टम। तो इसलिए वो चीज़ को बचने के वास्ते क्या करते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेशन इनके बाद आपको एक लिंक देता हूँ जिसमें तुम्हें आराम से डाउनलोड कर को एंटीवायरस फ्री वर्जन मैं बताता हूँ आपको इंशाल्लाह उसके बारे में। और यूएसबी स्टिक से अवॉइड करना, यूएसबी स्टिक जब भी इंजेक्ट करते हैं तो वी शुड मेक श्योर दैट राइट क्लिक स्कैन करना, ओपन करने से पहले किसके पास भी रंधे हो यूएसबी स्टिक, फर्स्ट वी नीड टू स्कैन इट, स्कैन करना। नेक्स्ट आपको सीडी ड्राइव्स, अभी तो नहीं है सीडी ड्राइव्स, लेकिन जिन जिन घरों में सीडी ड्राइव्स रहता क्या होता, सीडी ड्राइव के जरिए भी वायरसेस स्प्रेड होता, स्प्रेड होकर रेप्लिकेट होता, फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर डालता है, फिर फाइल्स को डिलीट कर डालता। तो सीडी ड्राइव से बचना। और फिर शेयर ड्राइव्स, जैसे अभी ये सेशन के बाद मैं इंशाल्लाह आपको गूगल का ड्राइव देता हूँ, शेयर ड्राइव, जहाँ पे प्रेजेंटेशन सब कुछ मौजूद रहता। गूगल जो भी तुम्हें शेयर ड्राइव में फाइल्स डालते हैं वो डालने से पहले स्कैन करको जो भी लेटेस्ट वायरस है पूरा स्कैन करको दिखाता है उसमें वायरस है क्या नहीं, तब जाकर स्टोर करको रखता, तो यू कैन यूज़ दैट फाइल। बट अननोइंगली थोड़े बहुत ईमेल्स, थोड़े बहुत लिंक्स रहते हैं, शेयर्ड रहते हैं, वो कौन भी ओपन कर सकते हैं, आम आदमी भी, वो क्लिक करे तो फाइल डाउनलोड होता, तो वो चीज़ से भी बचना। तो पहला क्या है, वेबसाइट्स, सस्पिशियस मेल्स, यूएसबी, सीडीज एंड शेयर ड्राइव्स। और उसे डिफेंड कैसा करना, अपना टीपी में जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी है आपके पास, उसका जो भी सिक्योरिटी पैच रहता अपडेटेड रहना। जैसे जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदे तो हर महीना पैचेस रिलीज़ करते रहता, जब भी सिस्टम ऑन कर को इंटरनेट को कनेक्ट करे तो ना पूछता वी हैव लेटेस्ट पैच रिसीव्ड ऑन सो एंड सो डेट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल इट और पोस्टपोन इट। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑन करने के बाद क्या कि काम से ओपन करे रहते हैं, पोस्टपोन कर डालते हैं, नहीं करना, फर्स्ट इंस्टॉल करो, जरा वेट करो, सिस्टम अपडेट हो जाते, तुम्हारा पैच अपडेट हो जाता ताकि तुम्हारा सिस्टम सिक्योर होता। और एंटीवायरस अपडेटेड रहना,
हो सके तो परचेज वायरस एंटीवायरस परचेज करो, या फिर मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, उसमें इंशाल्लाह यूज़ करके आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। और एनेबल मैकेफे वेब एडवाइज़र, मैं बोला था कि सस्पिशियस वेबसाइट यूज़ करे तो जहाँ पे सस्पिशियस लिंक्स रहता क्लिक करे तो विल बी विक्टिम ऑफ द हैकर। सो यहाँ पे एक स्टैंड अलोन टूल है मैकेफे वेब एडवाइज़र बोल के, वो टूल डाउनलोड करे तो बस तुम्हें वो टूल डाउनलोड कर तुम ब्राउज़र में डाल डालो, जो कुछ भी वेबसाइट में विजिट करते तुम्हें उसमें अगर सस्पिशियस लिंक रहा तो इट विल ब्लॉक इट, वॉट एवर द कंटेंट्स विच इज़ सिक्योर इट विल डिस्प्ले ओनली दोज कंटेंट्स। तो इंशाल्लाह मैं ये टूल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो भी यूज़ करो। और डो नॉट डाउनलोड एनी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से। होता क्या है वॉच करने का, हमें क्या तो भी काम हमारा रहा तो लैपटॉप में रहते डेस्कटॉप में रहते हैं, कौन सा फ्री है वॉच लेने का, पेड कौन सा भी नहीं करते हैं। अगर फ्री चूज़ करना है तो ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करो, कौन सा भी सिस्टम में डालो ना को। कई बोले तो अब देखो दो चीज़ें रहता, या तो फाइल डाउनलोड करना EXE फाइल तुम्हारे सिस्टम में डालना, तुम्हें रन करके तुम्हारा काम करा लेना, और दूसरा होता SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसमें क्या होता है बहुत सारे कंपनीज है, तुम्हें क्या भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन में जाओ वहाँ तुम्हारा क्या काम है करो, फाइल डाउनलोड करो, होता अच्छा, वो तुम्हारा सेफ भी रहता, सिक्योर भी रहता, तुम्हारा काम भी हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज को क्रॉप करना रहा, क्रॉपिंग सॉफ्टवेयर कहीं डालना है हमारे सिस्टम में, जब मैं ऑनलाइन में क्रॉप कर सकता हूँ, तुम्हें कौन सा भी ओवल शेप ले लो, फिर रेक्टेंगल ले लो, क्यूब ले लो, कौन सा भी ले लो शेप, तुम्हें ऑनलाइन में कर सकते हो, ऑनलाइन में कर लो। तुम्हें चुपके वो EXE फाइल डाउनलोड करके उसे फ्रीवेयर डाउनलोड करके उसके साथ वायरसेस रहते हैं, तुम्हारा सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता, स्लो कर डालता, और एट लास्ट क्या होता, क्या तो डेटा चले जाता, या फिर तुम्हें साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं, जैसे रैंसम हो जाता, सिस्टम पूरा हैक हो जाता और फिर पैसे पूछता तुम्हारा सिस्टम। तो उस तरीके से बचना। एंड फिशिंग ईमेल, एज आई सेड यू ऑलरेडी कि we'll get our mails, phishing emails with attachment, we should avoid it. And strong password, and set a strong password for everything. फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी अकाउंट्स बताया जाए, फिर बैंकिंग ऐप्स रंधे, मोबाइल ऐप्स, फ़ोन पे, फिर कुछ भी GPay कोई भी रंधे, उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। होता क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा चेक घर है जिसमें घर में क्या भी सामान नहीं, जिसमें जा भी ये पैसे नहीं, ये फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है, गोल्ड नहीं है, कुछ वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स या फिर वैल्यूएबल थिंग नहीं है मेरे घर में, नहीं रहने के बाद मैं क्या करता हूँ, छोटा 30 रुपये वाला लॉक डालता हूँ उसे घर को। भाई कोई वैल्यूएबल नहीं, चोरा को चोरी कर लेगा तो भी मुझे क्या भी नुकसान नहीं होता ज़्यादा। अगर वो मेरे घर में 10 लाख रुपए कैश है और ज़्यादा गोल्ड ऑर्नामेंट सब भी रखे रहते हैं, मकान तो बाहर जा रहा हूँ तो 30 रुपये वाला लॉक डालते हैं, हमें नहीं डालते। क्या करते हैं, 7 लीवर वाला अच्छा गोदरेज का बड़ा लॉक डालते हैं, कहता छोड़े तो भी नहीं तुमना बोल को। सेम उसी तरीके से जो भी तुम्हारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, फिर जो भी तुम्हें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फ़ोनपे GPay कहाँ पर भी, अपना पासवर्ड उतना स्ट्रांग रखना, इतना स्ट्रांग रखना कोई सा भी हैकर हैक नहीं कर सकना, क्रैक नहीं कर सकना पासवर्ड वो। और पासवर्ड हर 3 मंथ्स में चेंज करते रहना पासवर्ड तुम्हें। और मैं इंशाल्लाह बता दूँ, A to B, स्मॉल A to B, कैपिटल A to B या फिर 0 to 1, ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर को ज़्यादातर हमें ये रखने का पासवर्ड क्या रखते हैं, वेलकम 1 2 3 या फिर आई लव मैं इंडिया, ये पासवर्ड ना रखने का हमें, या फिर आई लव SDI के रखते हैं। उससे कितना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता क्रैक करने के वास्ते, क्या भी नंबर नहीं, क्या भी नहीं, उसमें आराम से क्रैक कर सकते हैं हमें। तो वो पासवर्ड जो रहते हैं ना कॉम्बिनेशन, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 minutes to crack those kind of passwords which contain small a to small z, capital A to capital Z, 0 to 1 यूजुअली। तब हम क्या करना, पासवर्ड को स्ट्रांग बनाना बोले तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, स्लैश, हैश, डॉलर सिंबल, परसेंटेज, ये सब भी यूज़ करे तो पासवर्ड स्ट्रांग होता। और यूजुअली क्या करते हैं, हमें अपना नाम, पासवर्ड क्या रहता, नाम, उसके साथ मोबाइल नंबर रहता, वो कभी भी नहीं रखना। ये तो तुम्हें दिए रहते हो डेटा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें दिए रहते, उसे तुम्हें पासवर्ड को रख रहे हैं। उसे कितना को लेंगे हैक करने के वास्ते, तुम्हारा खाली नंबर नाम ले लेते, वो डालता पासवर्ड है, वो क्रैक हो जाता पासवर्ड। तो वो चीज़ें से हमें क्या करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना जिसमें हमारा नाम, नंबर नहीं रहना, क्या भी डेट ऑफ बर्थ नहीं रहना, या फिर अब घर के बच्चे का नाम रखते हैं, उनके नाम रखते हैं, ये वो वाइफ के नाम, वो सब भी नहीं रखना। सब कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स बनाना, मैं इंशाल्लाह ईमेल के बाद आपको ये देता हूँ लिंक्स जहाँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। एवरी 3 मंथ्स को पासवर्ड को चेंज करना, और ईजी तरीके से मैं बताता हूँ पासवर्ड को कैसे याद रखना, वो भी मैं आपको लिंक में शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और लास्ट में जैसे मैं बताया था कि आपको लिंक्स शेयर करता हूँ, यहाँ पे एक गूगल स्टोर का एक पासवर्ड मैनेजर ऐप है, अवेरा बोल को, जिसमें आप डाउनलोड करना ऐप है। उसमें एक मास्टर पासवर्ड पहले साइन अप करना, मास्टर पासवर्ड सेट करना। मास्टर पासवर्ड याद रखे तो तुम ना उसके अंदर पूरे जितने भी बैंक का 100 के बैंक का तुम्हें अकाउंट्स खोले रहते भी, या फिर 100 के सोशल मीडिया अकाउंट्स रहते भी, पूरे अकाउंट्स वहाँ मैनेज कर सकते हो। तुम्हें उसका एक लिंक देता हूँ। और उसके बाद पासवर्ड जनरेटर ऐप है,
नॉर्टन का, वो ऐप का लिंक भी देता हूँ इंशाल्लाह। उसमें फुल कॉम्प्लेक्स वे ऑफ जनरेटिंग द पासवर्ड, 20 लेंथ का, 40 लेंथ का, 60 लेंथ का, 80 लेंथ का पासवर्ड उन्हें क्रैक करना हैकर बोले तो उसे ज़माना लग जाता। तो वही से कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखो तुम्हें, जहाँ तुम्हें दिखता है कि यहाँ पर मेरा अकाउंट्स में पैसे ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा क्रिटिकलिटी है ये चीज़ की, मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना वहाँ रखो। वहाँ चुप के वेलकम 1 2 3 रखे तो पैसे चले गए, उसके बाद भी इंट्रोगेशन करे था, बैंकिंग सर्विसेज बहुत टाइम ले लेता। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, और उसका लिंक भी मैं देता हूँ इंशाल्लाह। और एक स्टिंगर ऐप है मैकैफे का, वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, पहले से बहुत पुराने वायरसेस लेको अब तक जिस वक्त मैं वो स्टिंगर डाउनलोड करता हूँ, फ्रीवेयर है वो, मैकैफे साइट का, मैकैफे एंटीवायरस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब भी तुम्हें डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, डाउनलोड करने के बाद उसे रन करो, तब से लेको अब तक जितनी भी वायरसेस है पूरे वायरस कवर करता विद द लेटेस्ट वायरस डेफिनेशन कंटेंट। इट विल स्कैन योर एंटायर लैपटॉप। थोड़ा टाइम लेता, फाइल्स जितना रहता है उसके हिसाब से टाइम लेको स्कैन करको, हाई से पूरा डिलीट करको छड़ डालता, लैपटॉप क्लीन कर देता तुम्हारा, हैंग नहीं होता, परफॉर्मेंस लैग नहीं होता, क्या भी तुम्हें वायरस के शिकार नहीं होते। तो मैं वेब एडवाइजरी बोला, वेब एडवाइजरी का लिंक अवेलेबल है, और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अपडेट्स का भी लिंक अवेलेबल है इंशाल्लाह। इस लिंक में आपको, जैसे मैं बताया कि माइक्रोसॉफ्ट हर मंथ सिक्योरिटी अपडेट रिलीज़ करते रहता, आपका जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम रहा, उससे इंटरनेट कनेक्टेड रहा तो ऑटोमेटिक वो तुम्हें नोटिफिकेशन भेजता, अगर नहीं रहा तो नहीं भेजता नोटिफिकेशन। जहाँ तुम्हें ये लिंक में जाको जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, ढूंढ को कंपैटिबिलिटी चेक कर को उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, डाउनलोड कर को सिक्योर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि साइबर पुलिस का मैं लिंक दी हूँ, बैंगलोर नेशनल इंटेलिजेंस वाले का, तो इंशाल्लाह अगर तुम्हें क्या भी दिखा सस्पिशियस लिंक या फिर फ़ोनपे के जरिए कहाँ तो भी तुम विक्टिम हो गए साइबर क्राइम के अगर बोले तो, कहाँ तुम्हें तुम्हारा अकाउंट से पैसे चले गए बोले तो इंशाल्लाह ये तो तुम्हें कर सकती कि वेबसाइट को विजिट कर को, उनको मोबाइल नंबर डाल को व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अटैक दैट आई हैव बीन फेस्ड, वो तुमने इन्फॉर्मेशन उनको दिए तो बस उन्हें इंट्रोगेशन शुरू करते हैं, उन्हें तुम्हें कॉल भी करते हैं, उन्हें तुम्हें फीडबैक भी देते हैं उसकी रिगार्डिंग। और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको इंशाल्लाह इस साइबर अटैक और साइबर क्राइम से महफूज फरमाएं, आमीन। अगर आपके पास अगर क्वेश्चंस है कौन सा भी तो मेरा नंबर है, ईमेल है, या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो भी इंशाल्लाह बताऊँ। व्हाट वी शुड डू इफ वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड। ओके, एक क्वेश्चन आपको है, व्हाट वी शुड डू इफ वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पर्सन इन फेसबुक। ब्लॉक कर दो, अनफ्रेंड करो, ब्लॉक करो। मैं खुद भले खर्ग हूँ, फर्स्ट क्या होता है, मैं लिंक्डइन में मेरे पता 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट है लिंक्डइन में। लिंक्डइन क्या होता है, प्रोफाइल जो भी फ्रेंड बनाते करते हैं उसमें ये खुद लिंक्डइन प्रोफाइल को सर्च करता। लिंक्डइन आपको प्रोफाइल ये बनाने का, जॉब सर्च करने के वास्ते बता दो इस प्रोफाइल। लेकिन फ्रेंड बुक तुम्हें फेसबुक बोले ना, फेसबुक में अनफ्रेंड कर सकते, अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर सकते, या फिर तुम्हें जान रहे दूर के रिश्तेदार रहते। यूजुअली क्या होता, हमें जानते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं रोशन भाई जानता हूँ, रोशन भाई के कौन के रिश्तेदार रहते हैं उन्हें मुझे मालूम भी नहीं रहते, उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे रहते, हालांकि बल्लारी में रहते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। अगर तुम्हें दिख रहा उन्हें सस्पिशियस है, या फिर उन्हें उसके पोस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं तुम्हें, उन्हें कब की एक पोस्ट कर रहता 2009 में, उसके बाद एक पोस्ट भी नहीं रहता। ऐसे टाइप के फ्रेंड्स को, ऐसे टाइप के रिक्वेस्ट को सस्पिशियस रिक्वेस्ट मान सकते हैं। कई बोले तो उन्हें अपडेट नहीं कर रहा, क्या भी अपना खुद का जेन्युइनिटी नहीं डाल रहा। देखे रहेंगे तुम्हें फेसबुक में भी बहुत सारे लोग अपने आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते किसका की फोटो डालते हैं, इंटरनेट में डाउनलोड करते हैं किसका की फोटो डालते हैं, छपा डालते हैं, एक पोस्ट भी नहीं करते, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं आदमी को। वैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट से बच कर रहना, until unless we know them, we should accept it. If you have accepted it, then make sure that you have unfriended and blocked the friend request. If you have any kind of questions or anything, I'll provide my number and email as well. You can mail it to me or contact me via Facebook or WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullah. माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने जो वक्त दिया है और जो मालूमात दी है इसका बेहतर बदला इन्हें अता फरमाए। ये उम्मत की खैर ख्वाही है कि जहाँ पर मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर इंसान को ये लोग, क्योंकि जब धोखा देने वाले होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, तो ये मज़हब देखकर, दीन देखकर ऐसा नहीं होता कि इन्हीं को ही अटैक करना है। तो हर जो इनोसेंट होता है इन मानों में कि जिसे मालूमात नहीं होती, तो उनको ये लोग अटैक करते हैं इस तरीके से। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने पैसे खोए हैं, गंवाए हैं इस तरीके से गलत चक्करों में पड़कर।
एक तो ये चीज़, और एक बुनियादी चीज़ इसमें यह है कि हमारा जो माइंडसेट है कि फ्री में कहीं पैसा मिल रहा है, कैशबैक, ये तो इसमें हम फ़ौरन चले जाते हैं। यू हैव ओन द 1 लाख रुपीज़, जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ, ऐसे कोई लिंक आ गएगा तो ये जो हमारा माइंडसेट है कि फ्री में पैसे आते, तो याद रखो नथिंग इज़ फ्री। दुनिया में कोई चीज़ फ्री है नहीं, ये आपका कीमती वक्त ले रहा है। तो इसको आप समझें, और ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ज़रूरत है इस बात की। तो जो लोग सुन रहे हैं, तो जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये कहीं भी किसी भी इदारे के, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि वो भी इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करें, ताकि हमारे वो भोले भाले मुसलमान जिनको शौक़ तो है कि व्हाट्सअप यूज़ करना, फेसबुक यूज़ करना, और हर चीज़ जो आ रही है उसे ऐसा फॉरवर्ड करते हैं जैसे कि किसी ने इनको अपॉइंट किया है सैलरी देके, भाई तुम्हें फॉरवर्ड करना डेली का, तो ऐसा अपडेट करते हैं। जैसे कोरोना के अपडेट्स देखे, इतना जल्दी ये वैक्सीन के डेथ्स के रेट्स इतना ज़्यादा ये फॉरवर्ड करते हैं जैसे इनको सैलरी मिल रही है कि कौन तो सैलरी दे रहे, भाई तुम्हें डेली फॉरवर्ड करना, ऐसा करते। तो ये देख लें कि कौन सा हम काम कर रहे, ये ज़रूरी है या नहीं, और क्रॉस वेरीफाई करने के पास भी हमारे पास क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई ये जो बात आ रही है सही है या गलत है। तो इसीलिए इसके लिए इल्म होना ज़रूरी है, दुनियावी एतबार से भी इल्म होना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत में भी एक उसूल बताया गया, कुरान की एक आयत है, फरमाया गया कि जब कोई बात तुम्हारे पास पहुँचे तो बिफोर यू सेंड इट टू अदर वेरीफाइड, आप दूसरों तक पहुँचाने से पहले इसकी तहकीक कर लो। कुरान की आयत मैं आपको बता रहा हूँ, सूरह हुजरात की आयत है। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो है, इसका एक बेसिक क्राइटेरिया 1500 साल पहले कुरान ने अता फरमा दिया। आज ये साइबर सिक्योरिटी के रूल जितने भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इस्लाम मुकम्मल कंप्लीट दीन है। इसीलिए गुजारिश यही है कि दीनी माहौल से, ख़ासकर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से आप जुड़े रहें। अगर ऑनलाइन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारे साथियों से, क्वेश्चंस तो नहीं, यहाँ बैठे वालों 4-5 लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइज़र्स, उनके मोबाइल्स पर अगर कोई आए हैं तो क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो हमारे एक 10 मिनट स्पीकर हमारे टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस कुछ है तो बोलिए इंशाल्लाह। आप इसको सब्सक्राइब करें, बाद में ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब में भी अपलोड होगा, उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे आगे भी बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। एक तो हमारे जो दीनी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आगे चलकर ख़ासकर बच्चों की तरबियत के हवाले से प्रोग्राम्स करने का भी इरादा है। तो ख़ासकर आप जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, उससे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। एक तो हमारा फेसबुक पेज है, मस्जिद अहमद रज़ा का ऑफिशियल पेज है, इससे आप ज्वाइन रहें। उसके बाद मस्जिद अहमद रज़ा यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ें आप देखो, जितनी बातें आपको मिले, और ये कोई दुनिया की बात नहीं है। अगर आप सही देखेंगे तो ऐन दीन की बात है। हदीस में फरमाया गया दीन खैर ख्वाही का नाम है, यानी किसी की भलाई के बारे में सोचना, किसी को फ़ायदा पहुंचाना, ये असल दीन है। तो अब आज साइबर क्राइम के ज़रिए से अगर एक बंदा भी अगर इससे मालूमात हासिल करके अब उस गरीब से जाकर पूछे जिसने पूरा महीना पैसे कमाए हैं, और जैसे ही उसकी सैलरी क्रेडिट होती है तो कोई ना कोई हैकर और धोखा देने वाला पूरे उसके 10-20 हज़ार रुपये जब चोरी कर लेता, और जब बैंक वाले ने भी इन्हें जाता तो उन्होंने भी बोलता कि भाई आप खुद पासवर्ड मारे तो इसमें हमें भी क्या भी नहीं कर सकते। तो खुद सोचे उसकी उस वक्त बेबसी का आलम क्या होगा। और ऐसा हुआ है, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के गए हैं, क्योंकि मालूमात नहीं होती। इसीलिए मालूमात हासिल करें। और हमारे जो भी इज्तिमात हैं तो इसमें सिर्फ हम माज़अल्लाह नमाज रोज़ा ऐसा नहीं होता कि यही चीज़ें आपको बताएं, बल्कि आपको हर वो चीज़ बताएंगे जो दीन के मुताबिक है और जो आपको दुनिया में भी फ़ायदा दे और मरने के बाद भी फ़ायदा दे। एक सवाल है शायद, अगर एक सवाल है, मैं सवाल रिपीट करके हमारे स्पीकर को मौका दूंगा। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि इसमें कि आप 1 लाख रुपए जीत गए, बस अपना नाम, यू हैव ओन 1 लाख रुपीज़, यू आर गोइंग टू विन 2 लाख रुपीज़, यू हैव बीन सेलेक्टेड, ऐसा मैसेज आता और उसमें एक लिंक भी दे देते कि जिसकी वजह से वो कैसा ब्लॉक करना, ये पूछ रहे। नॉर्मल फेसबुक में और व्हाट्सएप पे तो ब्लॉक करते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज में कैसा ब्लॉक करना, ये सवाल है। तो गुजारिश है कि इसका जवाब दें।
एक्चुअली ये टाइप के मैसेजेस में जब आपको मैसेज आता है उसमें लिंक भी रहता, सब भी रहता, हमें ओपन करें तो भी क्या भी नहीं होता मैसेजेस, सो अनटिल अनलेस वी क्लिक दैट लिंक। यूजुअली क्या होता है, मैसेज रेड या फिर अनरेड रहता। यूजुअली जब मैसेज आपके मोबाइल में डिलीवर होता वो अनरेड फॉर्मेट में रहता, उसे ओपन करें तो भी क्या भी नहीं होता। लिंक जब रहता, लिंक क्लिक करे तो छूने का। तो इसलिए क्या करना, मैसेजेस में भी कौन से भी मोबाइल ले लो आप फिल वक्त कौन से भी स्मार्टफोन्स में, वहाँ भी है तुम्हारा ब्लॉक एंड रिपोर्ट। ब्लॉक करना, खुद को अपने आप को महफूज करना उस टाइप के यूज़र्स को नेक्स्ट टाइम हमें मैसेज करने से, और रिपोर्ट करना सर्विस प्रोवाइडर को। तो वो टाइप की सेम वे इन विच वी यूज टू डू फॉर व्हाट्सएप एंड अदर सर्विसेज, वी कैन ब्लॉक एंड रिपोर्ट, वी कैन सेव आवर सेल्फ एंड वी कैन सेव द कम्युनिटी एज वेल। सो होप दैट इज आंसर्ड योर क्वेश्चन आई बिलीव। MashaAllah. Jazakallah. So I feel we would like to conclude this program. So I would like to thank Speaker Muhammad Nizamuddin Ashrafi for giving a precious time, and he has sacrificed his much time, and he has dedicated to educate us and to give such a wonderful information. I would like to thank him, and even I would like to request him to join us and to be with us even in coming sessions wherever we need these are kind of information. And I would like to request our audience and viewers also, he can contact him and we will share some of the main informations like password generators और जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स के जो भी लिंक्स वगैरह है कि कैसे पासवर्ड सेट करना, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो ये बार बार आप सुने, क्योंकि एक बार सुनने से शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो ये आप सुने, उसके बाद लिंक्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, और कभी आप हमारे इज्तिमात वगैरह में भी आएंगे तो ये रहेंगे। और काफ़ी जो हमारे वीडियोस वगैरह बनते हैं और जो भी हमारे इमेजेस वगैरह बनते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पूरी टीम है, इसमें बहुत सारे हमारे साथी काम करते हैं। तो इसमें हमारे जनाब मोहम्मद निज़ामुद्दीन अशरफ़ी साहब का भी बड़ा सपोर्ट होता है बैकएंड में। कभी कभार हर बार जो है मैं ही सामने आता हूँ, लेकिन लोग यही समझते हैं कि भाई इन्होंने किच काम करे, हालांकि मेरा रोल इसमें ज़ीरो होता है। अब पूरी एक टीम होती है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक काम चल रहा है। हमारा जो भी व्हाट्सअप है और यूट्यूब है, फेसबुक है, इसे मेंटेन करना, इसे देखना, सब अल्हम्दुलिल्लाह ये इन लोगों की मेहनत है। इन्होंने शुरू से बग़ैर किसी बदले के, बग़ैर किसी इवज़ के, सिर्फ दीन व सुन्नियत के लिए इन्होंने अपना वक्त दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को अपनी शान के मुताबिक सवाब अता फ़रमाए और इनकी खिदमतों को कबूल फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मालिक करीम हमें कहने सुनने में इसी तरीके से और ज़्यादा दीन के कामों में और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में हमारी मदद फरमा, और आका करीम अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत को और भोले भाली उम्मत को इसी तरीके से धोखा देने वालों से हिफाजत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।